بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریکنگ نیوز آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ حافظ نے سب کچھ اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ جی ہاں، صدیوں کا بیٹا بھی سائیڈ پہ ہو گیا ہے اور ڈرٹی ہیری بھی سائیڈ پہ ہو گیا ہے۔ یہ لوگ اب کچھ بھی نہیں کر رہے، ڈائریکٹ حافظ آرڈر دے رہا ہے گراؤنڈ پہ لوگوں کو کام کرنے کے لیے، لوگوں کو اغوا کرنے کے لیے، تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے، اٹھانے کے لیے، غائب کرنے کے لیے۔ ڈائریکٹ حافظ خود فون گھما رہا ہے، خود آرڈر دے رہا ہے۔ جی ہاں، یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ ڈرٹی ہیری اور صدیوں کا بیٹا بیچ میں سے مائنس ہو گئے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک اور آپ کو خبر دیتا ہوں، نون لیگ والے عمران خان کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ، سارے لیڈرز کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے، اگر تمہیں حکومت مل گئی تو ہم پہ ظلم نہ کرنا، ہم سے بدلہ نہ لینا، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہم نہیں کر رہے بلکہ حافظ براہ راست خود کر رہے ہیں۔ یہ وہ بتا رہے ہیں۔ عمران خان کی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، وہاں سے بھی ایسا ہی فیڈ بیک ملا ہے کہ سب کچھ حافظ اب ڈائریکٹلی کر رہا ہے کنٹرول۔ اب اتنی زیادہ نفرت کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، دو وجوہات ہیں۔ دو لوگوں کو عمران خان پہ بڑا غصہ ہے، دونوں کا نعرہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ مجھے کیوں نکالا؟ نواز شریف جس کو ججز نے نکالا، وہ بھی عمران خان پہ الزام لگاتا ہے کہ مجھے عمران خان نے کیوں نکالا، اور ایک حافظ ہے جس کو اب تک یہ غم کھائے جا رہا ہے اور اس کو یہ غلط فہمی ہے کہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنا تھا تو عمران خان نے اس کو عہدے سے نکال دیا تھا اور فیض حمید کو لا کے ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا تھا۔ یہ غم کھائے جا رہا تھا اور ابھی یہ غم ختم نہیں ہوا تھا کہ آگے آ کے مزید غم ہونا شروع ہو گئے۔ اور وہ غم کیا ہے کہ عمران خان نے میرے آرمی چیف بننے میں رکاوٹیں ڈالی، میں اس سے بدلہ لوں گا۔ عمران خان یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ باجوہ نے واضح مجھے کیا تھا کہ میں نے جو تمہارے ساتھ سختیاں کی ہیں، جو آگے والا آ رہا ہے نا، تم بھول جاؤ گے تمہارے ساتھ کتنی سختیاں ہوں گی۔ تو عمران خان نے اگر کوئی ریزسٹنس دکھائی تھی تو وہ اس لیے دکھائی تھی کہ باجوہ خود کہہ رہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ جو کرے گا تم بھول جاؤ گے مجھے۔ یہ تب بات ہوئی تھی جب عمران خان کو گولیاں بھی لگ چکی، تو امیجن کریں کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ جو تمہارے ساتھ وہ کرے گا وہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، تو آف کورس ریزسٹنس ہونی تھی۔ لیکن اس کو حافظ نے اب پکڑ کے دل سے لگا لیا ہے کہ دو چیزیں، ایک مجھے کیوں نکالا اور ایک مجھے آنے سے کیوں روکا۔ اب ان دو چیزوں کو بنیاد بنا کے یہ پاکستان کی 70% یوتھ کو اپنے خلاف کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی آبادی کی اکثریت سے لڑائی مول لی جا رہی ہے ذاتی بغض اور ذاتی اناد کی وجہ سے۔ اس کا پاکستان کی خارجہ پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا پاکستان کی داخلی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا پاکستان کے دوست ممالک سے تعلقات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا پاکستان کی معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف تعلق ہے تو ذاتی بغض اور اناد سے ہے۔ لنڈن پلان بہت پیچھے رہ گیا ہے، وہ اب صرف ایک بہانہ اور ایکسکیوز ہے۔ ڈرٹی ہیری صرف سامنے فیس ہے، لنڈن پلان صرف سامنے فیس ہے، اصل میں حافظ اب اپنی ذاتی انا اور بغض نکال رہا ہے۔ جو اناد ہے اس کے دل میں وہ سامنے آ رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو آگاہ کر دوں کہ اب بیچ میں سے سارے کردار نکل گئے ہیں۔ اب پی ڈی ایم اگر حکومت چھوڑ کے الیکشن میں جانا چاہے بھی تو حافظ نہیں جانے دے گا، نہ جانے دے رہا ہے نہ جانے دے گا۔ الیکشن میں بھی پی ڈی ایم سے زیادہ حافظ روک رہا ہے، یہ ساری رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، اور اسی لیے وکلاء بھی سامنے آگے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی میں نے آپ کو پچھلی بھی کلپ دکھایا تھا ویڈیو میں، بہت اپروپریٹ انہوں نے بات کی تھی کہ وہی غیر جمہوری قوتیں ہی ہیں جن سے ہم ابھی مقابلہ کر رہے ہیں، جمہوری قوتوں سے مقابلہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ تو ہو گئی بات کلیئر۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ حافظ ڈاکٹرائن جو ہمارا پاکستان ڈاکٹرائن ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا اشرافیہ کا پاکستان ہوگا، نہ پرانا پاکستان ہوگا نہ نیا پاکستان ہوگا۔ ناظرین، عوام نے حافظ ڈاکٹرائن کو عبرتناک شکست دے دی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پول ہیک کیا گیا، آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ 5 گھنٹے صرف رہتے تھے اور ہمارا پاکستان پروجیکٹ جیت رہا تھا 65.6%۔ یہ اتنے بوٹس کے ذریعے انہوں نے کوئی 20-30 ہزار ووٹ ڈال لیا تھا بوٹس کے ذریعے، اور صرف 5 گھنٹے رہ گئے تھے۔ تب کسی نے مجھے ٹویٹ کر کے بتایا کہ آپ کا پول رگ ہو چکا ہے، تو میں نے صرف 4-5 اکاؤنٹس کو ٹیگ کیا اور میں نے کہا جی یہ پول رگ ہو گیا، اگر آپ بھی اس پہ ووٹنگ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہاں سے کچھ لوگوں نے ری ٹویٹ کرنا شروع کیا اور لوگوں نے پھر اس ضد میں کہ یہ پول کیونکہ رگ کر رہے ہیں کمپنی سرکار، یہ ہمارا پاکستان پروجیکٹ کو بوسٹ دینے کے لیے رگ کر رہے ہیں، دھاندلی کر رہے ہیں، تو لوگوں میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا اور اس کا اینڈ ریزلٹ یہ آپ کے سامنے ہے۔
1,94,025 वोट पड़े हैं। फाइनल रिजल्ट 53.4% वोट पड़ा है नया पाकिस्तान को। ये 1 लाख से कुछ ऊपर वोट बनता है। और हमारा पाकिस्तान प्रोजेक्ट को पड़े हैं 44.7% वोट, यानी तकरीबन 9-10% वोट नया पाकिस्तान फिर भी ज्यादा ले गया है। 9 से 10% वोट फिर भी ज्यादा ले गया है नया पाकिस्तान, जबकि मैसिव धांधली हुई है। इनको अगर 80,000 वोट पड़ा है या 90,000 वोट पड़ा है तो उसमें से 70,000 कम से कम धांधली की पैदावार है वोट। इतनी मैसिव रिगिंग हुई है। नॉर्मली पोल इतने बड़े लेवल पे जाते नहीं, मेरी जिंदगी में कम से कम मेरे किया गया कोई पोल भी 1 लाख से ज्यादा वोट ऊपर नहीं गए। तो ये 1,92,000 पे चला गया। तो क्या पता चलता है, अवाम किसी सूरत भी किसी फस्ताई नए निजाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इससे एक और चीज पता चलती है और ये आपके लिए सबक है। इसको आपने इक्वेशन को गौर से देखना है। 1,94,000 वोट पड़े हैं तो आप जीते हैं। नया पाकिस्तान का नारा जो अवाम की अक्सरियत का नारा है वो जीता। मैं इसके नीचे अगर आपको कमेंट्स दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो इनको वोट पड़े हैं सारे जाली हैं। नीचे कमेंट्स में शायद 8-10 लोगों ने कहा होगा कि हमें हमारा पाकिस्तान नारा पसंद है या पुराना पाकिस्तान पसंद है। आपको सैकड़ों हजारों कमेंट्स नजर आएंगे नया पाकिस्तान के हक में, जिससे पता चलता है कि जेन्युइन लोगों ने वोट हमारा पाकिस्तान को नहीं नया पाकिस्तान को किया है। क्या नतीजा निकलता है? इलेक्शन। ये भी इलेक्शन की तरह है, वहां भी ये इसी तरह रिगिंग करेंगे, हजारों वोट डालेंगे जाली धौंस धमकी धांधली से। लेकिन अगर आपकी बड़ी तादाद ने वोट कर दिया, हर जगह लाखों की तादाद में हर हल्के में लोग निकल आए बाहर और वोट डाला, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये धांधली नहीं कर सकेंगे और आप ही जीतेंगे, जिसको भी आप वोट देना चाहें। मैं ये नहीं कह रहा किसी पर्टिकुलर पार्टी को। अगर आपने धांधली को नाकाम बनाना है, आपकी तादाद मैटर करती है। और ये आज इस पोल को ज्यादा जोश से करवाने का मेरा मकसद एक ये भी था कि अवाम को दिखाना कि आपकी ताकत कितनी मैटर करती है। इन्होंने कम से कम भी 30-40 लाख रुपया लगाया है इस पोल के ऊपर, इसको रिग करने के लिए कम से कम। क्योंकि पोल को अगर आपने पॉट्स के जरिए करवाना हो तो आप खरीदते हैं ना, लोग खरीद लेते हैं, उसको टाइम लगता है। आपने अभी खरीदा, हो सकता है 24 घंटे बाद पोलिंग हो उसमें, जो जाली वोट डलते हैं। ये इन्होंने फौरी तौर पे खरीदने की कोशिश की है और जो खरीदे हैं। और बीच में ऐसा भी वक्त आया कि 5 मिनट के अंदर 10-10 हजार वोट 5 मिनट के अंदर हमारा पाकिस्तान के हक में पड़े। ये बॉट्स थे। ऐसे बॉट्स खरीदने के लिए आपको लाखों रुपया लगाना पड़ता है। तो सिर्फ इस पोल पे 30-40 लाख तो कम से कम इन्होंने लगाया है जीतने के लिए, फिर भी ये नाकाम हो गए हैं। ये मेरा और आपका पैसा टैक्स पेयर का जो छोटे छोटे पोल्स पे लगा रहे हैं, सिर्फ अपनी जिद और अना के लिए, अपने तकब्बुर को। लेकिन अल्लाह ताला तकब्बुर को शिकस्त देता है और अवाम ने अल्लाह की मदद से इस तकब्बुर को शिकस्त दी है और बता दिया है कि ये अवाम का हमारा नया पाकिस्तान होगा। पूरा नारा, ये अवाम का हमारा नया पाकिस्तान होगा। ये है अवाम का नारा, जिसमें कोई नंगा नहीं किया जाएगा, अगवा नहीं होंगे, लोग गायब नहीं किए जाएंगे। अवाम के वोट की अहमियत होगी, पार्लियामेंट की अहमियत होगी, जजेस की इज्जत की जाएगी, पुलिस अवाम की खिदमत करेगी, अवाम को मारेगी नहीं, चतरोल नहीं करेगी। ये सारा कुछ आपके सामने आ गया है। आपकी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है। ये आपके वोट की ताकत है। ये थर थर कांप रहे हैं, वरना ये इलेक्शन करा के धांधली करके जीत जाते ना। आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। आपने अपनी ताकत इस बार शो करनी है। आपके वोट में इतनी ताकत है जो किसी गोरी मिसाइल में नहीं है, जो किसी टैंक में नहीं है, जो किसी बंदूक में नहीं है, जो किसी अदलिया के पास भी नहीं है, किसी पार्लियामेंट के पास भी नहीं है। ये सारी ताकत, ये सारे इदारे आपसे डिराइव करते हैं। आप ये ताकत इन्हें मुहैया करते हैं, फराहम करते हैं अपने वोट के जरिए। हमें हमेशा कहा गया वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, होना वही है जो होगा। वोट से बहुत फर्क पड़ता है। आपका वोट बहुत ताकत रखता है अगर आप ये अपनी ताकत समझ जाएं और पहचान जाएं। नाजरीन, पूरी दुनिया में तहरीके इंसाफ कोशिश कर रही है, जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। यूरोप में, अमेरिका में मुलाकातें कर रहे हैं सियासतदानों से, जो करता धरता लोग हैं उन ममालिक में, डॉक्टर्स हैं या कोई सियासतदान है, वो मुलाकातें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर अमेरिका भी बोले और यूरोप भी बोले। कोई नहीं बोल रहा। लोग कह रहे हैं कि इमरान खान अमेरिका से कोई माफी मांग रहा है, सिर्फ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो दिला रहे हैं। एंड द फैक्ट कि वहां से कोई नहीं बोल रहा, ना यूरोपीय यूनियन बोल रहा है, ना अमेरिका बोल रहा है, ना बरतानिया। एक बयान नहीं आया कि आपने साथियों को क्यों कत्ल किया है। एक बयान नहीं आया कि आप सियासी कारकुनों को क्यों नंगा करके मार रहे हैं।
मतलब ये अमेरिका और यूरोप की साजिश से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है, वरना एक बयान तो कम से कम आ जाता। यूनाइटेड नेशन से कोई बयान नहीं आया, अमेरिका के फॉरेन ऑफिस से कोई बयान नहीं आया, बरतानिया के फॉरेन ऑफिस से कोई बयान नहीं आया, यूरोपीय यूनियन की तरफ से कोई बयान नहीं आया इस हवाले से। यह साजिश का पता देता है। लेकिन जब आप आवाम को बताते हैं कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं यूरोपीय ममालिक में, तो इन लीडरों पर दबाव पड़ता है। यह दबाव फिर असरअंदाज होता है बाकी सारी पॉलिसीज पे, और पाकिस्तान में कंपनी किसी की नहीं सुनती, अमेरिका और यूरोप की सुनती है। वो लेफ्ट साइड पे खड़े हों, ये लेफ्ट पे खड़े होते हैं, वो राइट पे खड़े हों, ये राइट पे खड़े होते हैं। बड़ा जरूरी है कि अमेरिका और यूरोप की आवाम को बताना कि इस टाइम पाकिस्तान में एक हाइब्रिड मार्शल लॉ है, आइन खत्म कर दिया गया है और अवाम पे तशद्दुद हो रहा है, जुल्म हो रहा है। अली जैदी गायब कर दिए गए हैं, वकास अमजद कारकुन है जो तहरीक इंसाफ के, कभी उनकी कोई ट्वीट मैंने नहीं देखी जो किसी इदारे के खिलाफ हो या कुछ हो, हल्का सा भी वो नहीं देते, वो बड़ी नॉर्मल बात करते हैं न्यूट्रल से। उनको भी उठा के ले गए हैं क्योंकि नहीं, ये बड़ा मसला है कि ये कौन इंतजाम कर रहा है सैरियों अफ्तारियों के, इमरान खान खाता क्या है, वहां सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है, छोटी छोटी बातें इन्होंने पूछनी है। फिर नाड़े में से इन्होंने भी कुछ निकालना होता है, चेक करना होता है, नंगा करने का इनको पता नहीं क्या शौक है। तो ये बड़ा जुल्म हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, अली मीन गंडापुर को जो गायब किया हुआ है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। आजाद कश्मीर में शब खून मारा गया, तनवीर इलियास को नायल करवाया गया, उसके बाद बंदे खरीदे तरीके इंसाफ के, 3 से 4 बंदे कहते हैं कि ऑलरेडी टूट गए, अब कल फैसला होना है वज़ीर आज़म का। इस फैसले में अगर 5 बंदे टूट जाते हैं तो पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म बनाने में कामयाब हो जाएगी। और अली मीन गंडापुर के पास क्योंकि कश्मीर की वजारत थी, वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे वहां की पॉलिटिक्स में, तो उनको अंदर रखा गया। और अगर ये अपना वज़ीर आज़म बना लेते हैं, आप देखेंगे कि अली मीन गंडापुर की उसके बाद जमानत भी हो जाएगी। ये सब एक बड़े प्लान का, सिनिस्टर प्लान का हिस्सा है जो ये किया जा रहा है। ऐसे में हम कहते हैं, और ये सारा कुछ हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान प्रोजेक्ट है जिसमें पीपल्स पार्टी को अहमियत देनी है। और बिलावल किसी ने वो जबरदस्त बात की कि जो इस्लामाबाद के गिर्द 10 किलोमीटर है ना, वहां पे बिलावल आजकल बड़े पॉपुलर है, यानी सदियों के बेटे। और फिर अगर आप पिंडी चले जाएं तो वहां पे हाफिज साहब के बिलावल साहब पॉपुलर हैं और उन्हीं को ज्यादा बूस्ट दिया जा रहा है। लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी पे आपने गौर नहीं किया, मैंने आपको पोल तो दिखाया है, मालूम नहीं 1.1% और पुराना पाकिस्तान यानी पीडीएम और पीपल्स पार्टी 1% भी अवाम में मकबूल नहीं है। जब 1,94,000 वोट पड़े हैं, इनको 1%, 1,000 वोट भी इन्हें मुश्किल से पड़ा है। आप अंदाजा लगा लें, या चलें 2,000 से जस्ट अंडर। तो अगर इतने ज्यादा ये गैर मकबूल हैं, तो इनकी हुकूमत को क्यों सहारा दिया जा रहा है? ये कंपनी के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आपकी तो फिर भी सपोर्ट हो जाएगी, बोट्स हैं, उनको निकाल भी दें तो 10-20 हजार शायद आपको वोट पड़ जाएगा। लेकिन इनकी सपोर्ट तो 1,000-2,000 भी नहीं है, लाखों में जब आप वोट डलवाते हैं, आप इनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आप अवाम के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं? दुनिया का कौन सा इदारा है जो अपनी अवाम के खिलाफ खड़ा होकर सक्सेसफुल रह सकता है? ये बुनियादी बात आपको जिस दिन समझ आ जाएगी, पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।